Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point, and I'm Muhammad Shafiq. My dear students and my dear audience, you can follow me on Twitter, Facebook, Instagram, and even on WhatsApp. Heart of the Darkness is a novel written by Joseph Conrad, and it is included in MA English part paper number 3, Modern Novels. Today we are going to elaborate, demonstrate, and explain the question of journey into subconscious. What is conscious, what is unconscious, and what is subconscious? The front part of the man's mind is called conscious, and this is second part of the mind is called unconscious, and this is the part of the mind which is called subconscious. So journey into subconscious by the hero of the novel, Marlowe. So this novel is written about the imperialistic pursuits. This is called, you may in simple words call, it's written about imperialism. What is imperialism? I definitely would like to explain and describe to you what is imperialism. Imperialism means that you occupy a distant land forcefully and the resources of that land, and you after that plunder its resources for the prosperity of his own self. This is called imperialism. So it is very common, it is very old theory, it is still going on, and the poor countries are are exploited by the imperialist, by the rich countries. So Britain, French, Americans are those countries who are called imperialist countries. So the question, journey into subconscious, actually this question you have to understand it with this sense that it moves on two levels. Number one, the hero of the story moves or journeys or travels towards African country Congo. Apparently it's a traveling or a journey of the hero, and secondly, on a second level, on a second layer, it shares with you that the thoughts, the ideas, and the which crosses the mind of the hero. This is the second level. So therefore it is called journey into subconscious. So these are the most important two questions: the significance of the title, which is already uploaded, and the second one is journey into subconscious. So paragraph by paragraph, line by line, word by word, this assignment is going to be explained before you by me. And at last, as usual, I say subscribe my channel, like my video, share it, and send me your comments in my comments box. Demands of the students about assignments of English Part 1 and Part 2 will be fulfilled if they send their feedback in the comments box. So let's start the question, journey into subconscious by Marlowe, Heart of the Darkness by Joseph Conrad. जर्नी इंटू सबकॉन्शियस यानी इंसान के दिमाग के जो तीन हिस्से होते हैं उसका सबसे पिछला हिस्सा सबकॉन्शियस होता है, उसका सफ़र. डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. हार्ट ऑफ द डार्कनेस साइकोलॉजिकल नावल, नफसियाती सा नावल है. इट डिस्क्राइब्स मार्लोज एक्सप्लोरेशंस ऑफ कांगो. ये मार्लो की कांगो की सियाहत को बयान करता है, बट एट द सेम टाइम दिस नावल इज़ आल्सो रिकॉर्ड ऑफ द इनर लाइफ ऑफ मार्लो. की अंदरूनी ज़िंदगी का भी रिकॉर्ड है ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स इन कांगो, जब उसने कांगो का सफ़र किया. हार्ट ऑफ द डार्कनेस सर्टेनली गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्लोज आउटवर्ड एक्सपीरियंसेस एट कांगो. हार्ट ऑफ द डार्कनेस यकीनन पेश करता है एक वाज़ेह तफसील मार्लो के बैरूनी तजर्बात की कांगो में, बट इट आल्सो गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द थाट्स एंड आइडियाज़ विच क्रॉस हिज माइंड. और ये हमें वाज़ेह तफसील भी पेश करता है उन ख्यालात की और उन तसव्वुरात की जो उसके दिमाग से गुजरते हैं इस सफ़र के दौरान कांगो में. मार्लो अपीयर्स नॉट ओनली एज अ मैन ऑफ एक्शन. मार्लो ना सिर्फ हमें अमल करने वाला शख्स दिखाई देता है, टेकिंग ग्रेट रिस्क, बट आल्सो एज अ थिंकर, बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरात का सामना करने वाला भी दिखाई देता है, और एक बहुत बड़ा मुफक्कर भी. हु ब्रूड्स एंड मेडिटेट्स अपॉन एवरीथिंग, जो ब्रूड सोचता है, एंड मेडिटेट्स और गौर फिक्र करता है हर चीज़ के ऊपर. दैट ही सीज, जो वो देखता है. ही अपीयर्स एज अ कीन ऑब्जर्वर, वो एक गहरा मुशाहदा करने वाला महसूस होता है. ही इज़ एन इंट्रोस्पेक्टिव मैन, वो एक अंदरूनी सोच रखने वाला शख्स भी है. हु कीप्स कॉन्स्टेंटली एग्जामिनिंग हिज ओन थाट्स, वो अपने
ख्यालात को का मुआयना भी मुस्तकिल करता रहता है एज दे राइज इन हिज माइंड, जैसे उसके दिमाग में वो उठते हैं। दस द नॉवल इज़ टू बी ट्रीटेड नॉट ओनली एज अ काइंड ऑफ मार्लोज एक्सप्लोरेशन ऑफ द डार्क कॉन्टेंट ऑफ अफ्रीका। तो इस नावल को हम इस तरह पेश नहीं कर सकते कि एक किस्म बना के कि ये मार्लो की सियाहत है अंधेरे बरे आज़म अफ्रीका की, बट आल्सो एज अ काइंड ऑफ एन एक्सप्लोरेशन बाय मार्लो, बल्कि मार्लो की तरफ से एक ऐसी सियाहत भी है और बोथ हिज कॉन्शियस अपने दिमाग के फ्रंट वाले हिस्से की सियाहत भी है एंड हिज सब कॉन्शियस माइंड और अपने दिमाग के तीसरे पिछले हिस्से की भी दरियाफ्त है। द फ्रेज हार्ट ऑफ द डार्कनेस मीन्स द इंटीरियर ऑफ कांगो। इस नाम को अमल जुमले हार्ट ऑफ द डार्कनेस से मुराद है कांगो का अंदरूनी हिस्सा, बट इट आल्सो मीन्स द इनर मोस्ट डेप्थ ऑफ द ह्यूमन माइंड। इसका मतलब ये भी है कि इंसान के दिमाग के जो अंदर पाई जाने वाली गहराइयाँ हैं। दस द नावल इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ टू फोल्ड जर्नी, यानी डबल तय लगा हुआ सफ़र है ये नावल। अ जर्नी इनटू कांगो एंड अ जर्नी इनटू द डार्क रियल्म्स ऑफ मार्लोस माइंड, यानी कांगो के का सफ़र और एक सफ़र जो कि इंसान के अंधेरे रियल्म्स इलाके हैं ऑफ मार्लोस माइंड, मार्लो के दिमाग के, यानी इन अ सेंस इनटू द डार्क रियल्म्स ऑफ द ह्यूमन माइंड इन जनरल्स, और वो गहरा इलाका जो इंसानी दिमाग के अंदर पाया जाता है। एट द वेरी आउटसेट, बिल्कुल नावल के आगाज़ में, मार्लो इज़ डिस्क्राइब एज सिटिंग इन द पोज ऑफ अ बुद्धा। मार्लो को बयान किया गया है बैठे हुए एक बुद्धा के अंदाज में। बुद्धा एक रूहानी मुफक्कर था, रूहानी शख्स था बुद्धा, प्रीचिंग इन यूरोपियन क्लॉथ, जो मगरबी लिबास में तब्लीग कर रहा है, विदाउट लोटस फ्लावर, और ये एक फूल है, उस फूल के बगैर। एंड व्हेन मार्लो स्पीक्स, या मार्लो बोलता है, इट इज़ वेरी मच लाइक अ फिलोसफर, लगता है जैसे कोई फिलोसफर है डिलीवरिंग अ डिस्कोर्स, और अपनी गुफ्तगू बयान कर रहा है। मार्लो नॉट ओनली नरेट हिज एक्सपीरियंसेस आउटवर्ड्स, मार्लो ना सिर्फ अपने बैरूनी तजर्बात बताता है, हैपनिंग्स वाक़यात ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के, बट आल्सो हिज इनवर्ड रिएक्शंस, बल्कि अपने अंदरूनी तासुरात भी, टू हिज एक्सपीरियंसेस, और अपने तजर्बात भी। मिसाल के तौर पर ही टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट द सिटी ऑफ ब्रसल्स मेड हिम थिंक ऑफ अ वाइट स्पल्चर्स। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो ब्रसल्स के शहर को जब देखता है तो वो सोचता है कि ये वाइट स्पल्चर्स, ये काबिल नफ़रत और नेक फितरत इलाका है। मीन्स आउटवर्डली इट सीम्स टू बी अ प्लेजेंट एंड रिचुअस, और ये बैरूनी तौर पर उनको दिखाई देता है बड़ा खुशगवार और नेकोकार, बट इट इज़ एक्चुअली करप्ट एंड डिस्गस्टिंग, लेकिन ये बदउनवान और काबिल नफ़रत है। व्हेन ही स्पीक्स अबाउट हिज इनकाउंटर विद द टू निटिंग वूमेन, जब वो अपना इनकाउंटर यानी सामना बयान करता है उन दो यानी ऊन बुनने वाली ख़वातीन को, ही डिस्क्राइब्स हिज मेंटल रिएक्शंस टू देम, वो अपना जहनी जो तासुर है वो बयान करता है उनके बारे में। हेल खुदा हाफिज़ ओल्ड नीटर ऑफ ब्लैक वूल, दोज हु आर अबाउट टू डाई सल्यूट यू, यानी जो तुमसे मिल के जाते हैं वो जो है वो मौत को सलाम करने वाले के बराबर ही था। सिमिलरली ही डिस्क्राइब्स हिज रिएक्शंस टू द डॉक्टर के बारे में अपना रद्द-ए-अमल बयान करता है, हु एग्जामिन्स हिम, जो उसका मायना करता है, एंड हु मेजर्स हिज स्कल्स टू वॉच द मेंटल चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल्स, जो पेमाइश करता है उसकी खोपड़ी की देखने के लिए उसकी जहनी तब्दीली और अफराद की ड्यूरिंग देयर स्टे इन द डार्क कॉन्टिनेंट, और उन अफराद के साथ जो कि उसको अंधेरे बर आज़म में मिलेंगे उनके साथ। सब्सिक्वेंटली नतीजतन, और आगे आने वाले वाक़यात में, मार्लो सेज दैट ड्यूरिंग हिज ट्रैवल थ्रू कांगो के सफ़र के दौरान, ही रियली बिकम अ फिट सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, वो एक बड़ा मुनासिब मौजू बन जाता है नफ्सियात का मुतालिया करने वाला। सिमिलरली सेलिंग टूवर्ड्स कांगो ऑन अ फ्रेंच स्टीमर, फ्रांस की बनी कश्ती के ऊपर कांगो की तरफ सफ़र करते हुए, मार्लो अगेन रिकॉर्ड हिज थॉट्स, अपने ख्यालात रिकॉर्ड करता है। ही कीनली फील्स हिज आइसोलेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द क्रू, अमले के अफराद अरकान के दरमियान वो अपने आप को इंतहाई अकेला महसूस करता है। आइसोलेशंस विद होम, जिनके साथ ही हैड नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिनके साथ उनका कोई बात करने का राब्ता नहीं था। हाउएवर द वॉइस ऑफ द सर्फ वाज पॉजिटिव प्लेयर, और समंदर की झाग सर्फ की आवाज़ जो थी वो उसके लिए एक मुस्बत खुशी थी। लाइक द स्पीच ऑफ अ ब्रदर, जैसे एक भाई की गुफ्तगू होती है। देन ऑन सीइंग अ वारशिप फायरिंग इट्स गन, जब उसने देखा कि एक जंगी जहाज़ फायरिंग कर रहा है गन्स के साथ इनटू द इमेंस फॉरेस्ट, एक लामहदूद जंगल में, विदाउट हैविंग एनी टारगेट इन व्यू, और बगैर किसी टारगेट के, मार्लो फाइंड्स द एक्शन ऑफ द वारशिप्स टू बी इनकम्प्रीहेंसिबल, और यानी उस जंगी जहाज़ की फायरिंग को वो नाकाबिल समझता है। हेयर ही फील्स अ टच ऑफ इनसेनिटी, पागलपन का एक एहसास महसूस करता है इन द वारशिप्स प्रोसीडिंग, इस जंगी जहाज़ की कार्रवाई को देखकर। लेटर मार्लो सीज हाफ अ डजन ब्लैक मैन टाइड टुगेदर विद अ चेन, और फिर आधी दर्जन लोगों को काले रंग के जो था वो चेन जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। एंड ईच वीरिंग एन आयरन कॉलर, और लोहे का कॉलर उन्होंने पहना हुआ था गले में, अराउंड हिज नेक, अपनी गर्दन के गिर्द। दिस साइट, ये नज़ारा, प्रोड्यूस अ चेन ऑफ ऑफुल थॉट्स, जंजीर पैदा करता है खौफनाक ख्यालात की, इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। मार्लोज इनकाउंटर विद द मैनेजर ऑफ द सेंट्रल स्टेशन के मैनेजर के साथ मार्लो का जो इनकाउंटर सामना होता है, एंड द ब्रिक मेकर, और
ईंटें बनाने वाले के साथ आल्सो गिव्स राइज टू वेरियस थॉट्स, ये भी उसके दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात को जन्म देता है, उसके ख्यालात को उसके दिमाग में जन्म देता है। द मैनेजर सीम्स टू बी अ हॉलो मैन, से खोखला आदमी दिखाई देता है मैनेजर मार्लो को। वाइल द ब्रिक मेकर अपीयर्स टू बी अ, और ईंटें बनाने वाला उसको जाहिर होता है पेपियर मैची में फेस्टोफिलियस, ये शैतान का नाम है, एक ड्रामा में इस्तेमाल किया गया है, वहाँ से लिया गया है। मार्लो टेल्स दैट ही हैज़ ऑलवेज हेटेड एंड डिटेस्ट लाइज, मार्लो कहता है कि उसको हमेशा नफरत और झूठ बोलने से नफरत थी। बिकॉज अ लाई सिंपली अपॉल्स हिम, क्योंकि झूठ उसको सीधा सीधा खौफजदा करता था। ही फाइंड्स अ टेंट ऑफ डेथ, वो मौत का धब्बा महसूस करता है झूठ बोलने में। एंड अ फ्लेवर ऑफ मॉर्टेलिटी इन लाइज, और झूठ की कोई ज़िंदगी नहीं होती उसमें। हाउएवर ऑन दिस ओकेजन, इस मौका पर मार्लो अलाउज द ब्रिक मेकर्स फॉल्सली टू एज्यूम, मार्लो इजाज़त देता है इस ईंटें बनाने वाले को झूठे अंदाज में कि वो तसव्वुर करे, एज्यूम दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस अमंग द हाई ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, कि उसकी कंपनी के ऊंचे लोगों के साथ काफ़ी ताल्लुकात है, इन्फ्लुएंस है, उसका असर। लेटर मार्लो सेज दैट द फिगर ऑफ मिस्टर कर्ट्स एट दिस टाइम वाज लाइक अ ड्रीम, मिस्टर कर्ट्स की शख्सियत उसके लिए इस वक्त एक ख्वाब की तरह थी। ही फर्दर सेज दैट नो मैन कैन कन्वे टू अदर्स द लाइफ सेंसेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ज़िंदगी के वजूद के एहसास को एक आदमी दूसरे को नहीं समझा सकता, ना बता सकता है। वी लिव एज वी ड्रीम अलोन, हम जिंदा रहते हैं जैसे हम अकेला ख्वाब देखते हैं। दस मार्लो प्रोब्स हिज माइंड, मार्लो अपने दिमाग में खुब जाता है। एंड ट्राइज टू डेल्व इन टू द डेप्थ ऑफ हिज ओन माइंड, डेल्व मीन उतरता है गहराइयों में अपने दिमाग की। लेटर मार्लो स्पीक्स अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, वहाँ पे जो काम चल रहा था उसकी फितरत के बारे में बात करता है। विच वी डू, जो हम करते हैं। ही हैज़ टू वर्क हार्ड ऑन द शिप, उसको अपनी बोट पर सख्त मेहनत करना पड़ती है। ही सेज दैट हिज माइंड वर्क्स मेक्स हिम फॉल इन लव विद द स्टीमर, वो कहता है कि उसकी सख्त मेहनत जो है उसको अपनी कश्ती के साथ मोहब्बत का शिकार कर देती है। ही सेज दैट दिस स्टीमर गिव्स हिम अ चांस टू फाइंड आउट व्हाट ही कुड डू, वो कहता है कि ये कश्ती उसको मौका देती है कि वो तलाश कर सके वो जो नहीं कर सकता था। नो ही सेज दैट दो ही डज नॉट लाइक द वर्क, वो काम को पसंद नहीं करता। येट ही लाइक्स व्हाट इज़ इन द वर्क, बल्कि जो काम के अंदर है वो उसको पसंद करता है। वर्क सेज मार्लो कहता है कि काम क्या है। गिव्स अ मैन द चांस टू फाइंड हिमसेल्फ, काम इंसान को मौका देता है कि वो खुद को तलाश करे। एंड हिज ओन रियलिटी, और अपनी हकीकत को। मार्लो कंटिन्यू टू मेडिटेट अपॉन वट एवर ही सीज, मार्लो जारी रखता है गहरा सोचना जो कुछ वो देखता है। एंड ओवर हीयर्स, और वो सुनता है। एट द वेरी आउटसेट, नॉवल के बिल्कुल आगाज में ही सेज दैट इन परफॉर्मिंग द डेली ड्यूटीज़ ऑफ अ रूटीन काइंड, के रोज़मर्रा के किस्म की काम के फ़राइज़ को अंजाम देते हुए, अ मैन कम्स टू नो, एक आदमी को पता चलता है, ओनली द सरफेस रियलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की सतही हकीकत का। बिकॉज द इनर ट्रुथ इज़ हिडन फ्रॉम हिम, और अंदरूनी सच इंसान से छुपा हुआ होता है। देन ही डिस्क्राइब्स हिज रिएक्शंस टू दिस सीनरी विच ही विटनेसेस, फिर वो बयान करता है अपना रद्द-ए-अमल उस सीनरी मंजरनामे को, विच ही विटनेस, जिसका वो गवाह था। ही सेज वी पेनिट्रेटेड डीपर एंड डीपर, हम सरायत करते गए गहरे अंदाज में। इनटू द हार्ट ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरे के दिल में। एंड द अर्थ दैट टाइम सीम्स अनअर्थली टू हिम, और ज़मीन और वक़्त उसको ऐसे लग रहा था जैसे अनअर्थली, जैसे ज़मीन का ये वक़्त ना हो। अ लिटिल लेटर ही सेज दैट द माइंड ऑफ द मैन इज़ केपेबल ऑफ एनीथिंग, इंसान का दिमाग किसी भी चीज़ की अहलियत रखता है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन इट, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर है। इट कंटेन्स बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, ये माजी और मुस्तकबिल को अपने अंदर रखता है। ही सेज दैट मैन फेसेस ऑल द ऑर्डियल्स, इंसान तमाम तकलीफें बर्दाश्त करता है। विद हिज ओन इनबॉर्न स्ट्रेंथ, अपनी अंदरूनी पैदाइशी ताकत के साथ। प्रिंसिपल्स वुड सर्व नो पर्पस, असूल कोई मकसद पेश नहीं करते। ओनली अ डिलिबरेट बिलीफ इज़ नीडेड, एक सोचा समझा अकीदा की ज़रूरत होती है। डेलिबरेट बिलीफ इज़ नीडेड। देन ही प्रोसीड्स टू डिस्क्राइब, फिर वो आगे बढ़ता है बयान करने के लिए, द करेक्टर ऑफ द फायरमैन, आग को बुझाने वाले आदमी की, ऑन हिज स्टीमर, अपनी बोट के ऊपर। लेटर व्हेन मार्लो डिस्कवर्स अ बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सीमैनशिप्स इन द डेजर्टेड हर्ट, मार्लो जब दरियाफ्त करता है एक किताब मौजू पर कश्ती चलाने के अंदाज में, इन द डेजर्टेड हर्ट, एक वीरान झोंपड़ी में। ही सेज दैट इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी इंथ्रॉलिंग बुक, ये इतनी लुभाने वाली किताब नहीं थी। बट इट शोज़ एन ऑनेस्ट कंसर्न फॉर द राइट वे ऑफ गोइंग टू वर्क, लेकिन ये एक ईमानदारी का ताल्लुक ज़रूर शो करती थी ये किताब के अपने काम पर कैसे जाना चाहिए। बट स्टिल मोर सरप्राइजिंग वर द नोट्स रिटन इन पेंसिल, लेकिन इस किताब के ऊपर हैरत अंगेज़ तौर पर लिखे गए नोट जो थे वो उसके लिए पेंसिल के साथ काफ़ी ज़्यादा कशिश वाले थे। इन द मार्जिन ऑफ द बुक, किताब के साइड पे जो मार्जिन होता है, वर सरप्राइजिंग फॉर हिम, उसके लिए हैरानकुन थे। मार्लो हियर ऑब्जर्व्स दैट नो मैन इन दिस वर्ल्ड इज़ सेफ फ्रॉम ट्रबल,
तकलीफ़ से इस दुनिया में कोई भी इंसान बचा हुआ तो नहीं है एट एनी स्टेज इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में। मार्लो रिफ्लेक्शन अपॉन कैनिबल्स क्रू, मार्लो का वहशी अमले के ऊपर जो रिफ्लेक्शन सोच विचार थी और आल्सो नोट वर्दी, वो भी नोट करने वाली है। द क्रू कंसिस्ट ऑफ कैनिबल्स, वहशियों के ऊपर मुश्तमिल था, हु कुड ईट ह्यूमन फ्लैश टू सेटिस्फाई देयर हंगर, जो अपनी भूख को मुतमिन करने के लिए इंसानी गोश्त भी खा सकते थे। ये लोग अमले के उसके साथ थे स्टीमर पर, बट दे डिड नॉट डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मार्लो फील्स अमेज्ड इन स्पाइट ऑफ देयर नोइंग हंगर, मार्लो महसूस करता है हैरान बावजूद उनकी नोइंग ज़बरदस्त भूख के बावजूद। दे डिड नॉट किल द वाइट मैन ऑन बोर्ड, कश्ती के ऊपर वो किसी सफ़ेद आदमी को नहीं खाते। मार्लो आस्क वेदर इट इज़ सुपरस्टिशंस, मार्लो सोचता है कि क्या तोहम परस्ती तो नहीं है, या सब्र है, या खौफ है, और सम काइंड ऑफ प्रिमिटिव ऑनर, या कदीम बशिंदा होने की कोई इज़्ज़त है जो उनके दिल में है। वाइल विच परवर्ड दिस कैनिबल्स, जो रोक रही है इन दरिंदों को फ्रॉम अटैकिंग द वाइट मैन, के वो सफ़ेद आदमी के ऊपर हमला करें। मार्लो सेज इट टेक्स अ मैन ऑल हिज इन बॉर्न स्ट्रेंथ्स टू फाइट हंगर प्रॉपरली, इंसान को चाहिए कि वो अपनी पैदाइशी ताकत और क़ुव्वत इस्तेमाल करे लड़ने के लिए भूख के साथ मुनासिब अंदाज में। इट इज़ ईजियर टू एंड्योर द डैमनेशन ऑफ वन सोल, अपनी रूह की जो डैमनेशन लानत मलामत होती है एंड्योर करना आसान होता है, दैन टू बियर द पैग ऑफ हंगर, बजाय सदमे बर्दाश्त करना भूख के। देयर फॉर मार्लो इज़ फिल्ड विद एडमिरेशंस, मार्लो तारीफ़ के साथ भर जाता है फॉर द सेल्फ रिस्ट्रेन, खुद को रोकने पर, ऑफ दोज कैनिबल्स, इन वैशियों के। दैन देयर आर रिफ्लेक्शंस ऑफ मार्लो अपॉन द हेल्समैन्स किलिंग, फिर कबीले के लोगों की जो कत्लो गारत होती है उसके ऊपर वो सोचता है, थ्रू हिज ओन फूली, अपनी बेवकूफ़ी के ज़रिए। द एक्सप्रेशन इन द डेड मैन हेल्समैन आइज हॉन्ट्स मार्लो, वो जो तासुरात एक मरे हुए कबीले के शख्स की आंखों में होते हैं वो डराते हैं मार्लो को। देयर इज़ एन इनकन्सीवेबल मैंसिंग एक्सप्रेशंस, एक नाकाबिले यकीन मैंसिंग एक्सप्रेशंस, हैरान कर देने वाले तासुरात होते हैं। इन द फ्राउन, गुस्से में, ऑन द डेड मैन फेस, मरे हुए आदमी के चेहरे पर। मार्लो थिंक्स इफ़ द हेल्स मैन हैड बीन लैकिंग इन सेल्फ रिस्ट्रेन, मार्लो सोचता है कि अगर इस कबीले के फ़र्द के अंदर कमी थी खुद को रोकने की। देयर आर आल्सो मार्लोज रिफ्लेक्शन अपॉन मिस्टर कर्ट्स, मिस्टर कर्ट्स के बारे में भी वो सोच विचार करता है। हैड कलेक्टेड, जिसको वो इकट्ठा, मिस्टर कर्ट्स के बारे में भी सोचता है। मिस्टर कर्ट्स हैड कलेक्टेड, बार्टर्ड, स्विंडल्ड और स्टोलन मोर आइवरी दैन ऑल द अदर एजेंट्स, और वो मार्लो के बारे में सोचता है जो इकट्ठा कर चुका था, बार्टर्ड लेन देन कर चुका था, स्विंडल मीन बुझा चुका था, और स्टोलन और चोरी कर चुका था। वो आइवरी, आइवरी हाथी के दांत को भी कहते हैं, लकड़ी को भी कहते हैं, और फिर ये लालच को भी गोरे की कहते हैं, गोरे की लालच यहाँ इसका मतलब। दैन ऑल द अदर एजेंट्स टेकन टुगेदर, जो कि बाकी दूसरे एजेंट्स मिलकर ले जा रहे थे। मिस्टर कर्ट्स वॉज गिफ्टेड विद द इलोक्वेंस, मिस्टर कर्ट्स को तोहफा मिला था अल्लाह की तरफ से इलोक्वेंस, शीरीं गुफ्तगू करने का, एज हिज ग्रेटेस्ट गिफ्ट, और ये उसका सबसे बड़ा तोहफा था। दैन द नरेशन सेंटर्स अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर कर्ट्स, फिर बयानिया मरकज़ या तवज्जा उसकी लग जाती है मिस्टर कर्ट्स की शख्सियत की के ऊपर। द फैक्ट्स, वो हकीकतें अबाउट मिस्टर कर्ट्स आर सर्टनली वेरी इंट्रीगिंग, बड़ी साजिशी, वो सारी हकायक सारे बड़े साजिशी हैं। बट सो आर मार्लोज रिएक्शंस टू दोज फैक्ट्स, और मार्लो के रद्द-ए-अमल भी उन हकीकतों की तरफ वैसे ही हैं। इट सीम्स टू मार्लो दैट मिस्टर कर्ट्स हैज़ टेकन अ हाई सीट, मार्लो को लगता है कि मिस्टर कर्ट्स ने ऊंचा ओहदा ले लिया है अमंग द डेवल्स, शैतानों के दरमियान, ऑफ द लैंड्स, उस ज़मीन के शैतानों के दरमियान। हेयर मार्लो अगेन टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ इनर स्ट्रेंथ इन अ मैन, मार्लो यहाँ फिर बात करता है अंदरूनी ताकत की जो इंसान के अंदर है। ही सेज यू मस्ट फॉल बैक, इंसान को चाहिए कि भरोसा करे अपॉन योर ओन इननेट स्ट्रेंथ, अपनी अंदरूनी ताकत के ऊपर, अपॉन योर ओन कैपेसिटी फॉर फेथफुलनेस, अपने वफादारी और अकीदे की जो गुंजाइश और ताकत है उसके ऊपर। इफ़ यू आर टू फेस द टेरर ऑफ स्कैंडल, और अगर आपने बुराई के खौफ का सामना करना है, ऑन द गैलोस, फांसी के फंदे पर, और आ ल्यूनेटिक सैलम, या पागलों की जन्नत में रहना है अगर आपने। मार्लो आल्सो स्पीक्स अबाउट द स्पेल, उस सहर के बारे में भी बात करता है, विच मिस्टर कर्ट्स हैड कास्ट अपॉन हिज ओन माइंड, जो मिस्टर कर्ट्स ने उसके दिमाग पर कास्ट अपॉन डाल दिया था असर। दैट मार्लो रियली बिगन्स टू एडमायर हिम, मार्लो उसकी हकीकत में तारीफ़ करना शुरू कर देता है, डिस्पाइट द मैंस डिमोनिक करैक्टर, बजाय कि इंसान के शैतानी किरदार के बावजूद। वैन मिस्टर कर्ट्स स्लिप्ड अवे फ्रॉम द शिप्स कैबन, जब मिस्टर कर्ट्स फिसल कर निकल के बाहर आ जाता है उस जहाज़ के कैबन से जिसमें मार्लो उसको ले जा रहा होता है, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, इन रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द वाइल्डरनेस,
जंगल की जो वीरानी थी उसकी आवाज़ के ऊपर जब मार्लो मिस्टर कर्ट्स निकल के बाहर भागा आता है कि मैं इस जंगल को नहीं छोड़ना चाहता, मार्लो चेस्ड हिम इनटू द फॉरेस्ट, मार्लो जंगल में उसका पीछा करता है, एंड परस्यूडेड हिम टू रिटर्न टू द शिप, और उसको तरगीब देकर, लालच देकर, कायल करके वापस ले आता है शिप में कि तुम्हारा इलाज करवाएं, तुम ठीक नहीं हो। दस मार्लो हैज़ डिवेल्प्ड अ कीन पर्सनल इंटरेस्ट इन हिम, अब मार्लो ने पैदा कर ली थी एक गहरी दिलचस्पी उसके अंदर मिस्टर कर्ट्स में। इवन आफ्टर रिटर्निंग टू यूरोप आने के बाद मार्लो रिमेन्स लॉयल्स टू मिस्टर कर्ट्स मेमोरी, मिस्टर कर्ट्स की याद के साथ मार्लो बड़ा वफादार रहता है। व्हेन मिस्टर कर्ट्स फियांसे आस्क हिम व्हाट वर मिस्टर कर्ट्स लास्ट वर्ड बिफोर डेथ, जब मिस्टर कर्ट्स की मंगेतर मार्लो से पूछती है कि उसके आखिरी अल्फाज क्या थे मरने से पहले, मार्लो टेल्स अ लाई, झूठ बोलता है। सिल्वर कहता है दैट इट वाज हर नेम बाई इंटेंडेड, ये तुम्हारा नाम था। मिस्टर कर्ट्स की मंगेतर से कहता है कि तुम्हारा नाम था उसकी ज़ुबान पर। इट सीम्स टू मार्लो को दिखाई देता है इफ़ ही हैड स्टेड फॉर सम इन टाइम लॉन्गर इन कॉन्गो, कि अगर वो थोड़ा और वक्त कॉन्गो में स्टे करता, एंड हैड बिगन टू मिक्स विद द सैवेजेस, और वो मेल मिलाप रखता है इन दरिंदों के साथ, वैश्यों के साथ, ही टू वुड हैव फॉलोड द सेम पाथ ऑफ मिस्टर कर्ट्स, तो वो मिस्टर कर्ट्स का ही रास्ता इख्तियार कर लेता। दिस इज़ हाउ वी कम टू नो, ये है वो अंदाज जिससे हमें पता चलता है द वर्किंग ऑफ मार्लो सबकॉन्शियस माइंड, मार्लो के सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। मार्लो कन्वेज द सटल इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीमिटिज्म, मार्लो वाज़े करता है उस तेज़ तरार और तुर्श असर को कदीम पसंदी के अपॉन हिमसेल्फ, अपने ऊपर। हेयर मार्लो ट्राइज टू ले बेयर, यहाँ मार्लो ने कोशिश की है ले बेयर, बेनकाब करने की ही सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इंसान के दिमाग के सबसे पिछले हिस्से को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसमें सारी इंसानियत के साथ होने वाले वाक़यात और मामलात इंसान के इस हिस्से में पड़े होते हैं। So rest of the assignments are available in the playlist of my channel for the students of M English Part 1, Part 2. Inshallah, see you next in the next video. Bye bye.